Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So welcome all of you. In last lecture, we have seen the antisoric drugs, antisoric medicines, and the concept of antisoric miasm and antisoric remedies. So how to, when to use the antisoric remedies. Okay. So today we will see the causative factors of disease, causation of disease, the concept of acute disease. Mostly we have learned the exciting causes are the causative factors of the acute diseases. So according to Hahnemann, according to Dr. Vijay sir, आज हम ये देखेंगे. So exciting causes or acute diseases are described in aphorism number 73 by Hahnemann. So what is 73? As regard acute diseases, they are either of such a kind as attack human being individually. The exciting cause being injurious influences to which they were particularly exposed. Yes. So mostly acute diseases में exposure important होता है. तो एक्सपोजर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किस फैक्टर से एक्सपोज हुआ जिसकी वजह से एक्यूट सिम्टम आए. सो एक्सेस इन फूड और एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट, सीवियर फिजिकल इंप्रेशन, chills, overheating, dissipation, strains, etc. So these are the factors. These are responsible for acute conditions, acute diseases, and these are the causative factors or exciting causes of acute diseases. Or physical irritation, mental emotions, and the like. So not only the mechanical, but also physical and mental factors are there. Sometimes climatic factors are also important. So physical irritation, mental emotions, and like are exciting causes of such acute febrile affections. In reality, however, they are generally only a transient explosion of latent sora. तो जब कभी हम इन फैक्टर से एक्सपोज हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो सोरा होता है वो फास्टली रिएक्ट करता है. दैट इज द एक्सप्लोजन ऑफ लैटेंट सोरा which spontaneously returns to its dormant state if the acute diseases were not of too violent or violent of a character and were soon quelled. Yes. तो अगर ये जो बर्स्ट ऑफ लैटेंट सोरा हुआ है, ये अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन नहीं है, बहुत ही मतलब हाई एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, बहुत हाई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सीवियर एक्यूट डिजीज नहीं है, सीवियर एक्यूट कंडीशन नहीं है, तो ये पट से रिटर्न भी होता है अपने डोमिनेंट स्टेट पे, मतलब रिवर्सल ऑफ डिजीज या फिर क्योर ऑफ डिजीज भी होता है. यस. So, or they are of such a kind as attack several persons at same time, here and there, sporadically, by means of meteoric and telluric influences. Yes. तो हमने देखा है कि किस तरह से मेटेरिक एंड टेलोरिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से बॉडी अफेक्ट होती है. नॉट इवन सिंगल पर्सन, बट इट इज आल्सो
मतलब इपिडेमिक्स आल्सो, स्पोरेडिक आल्सो, यस। सो जैसे हमने देखा है कि कोरोना में हमने मतलब बहुत से साइंटिस्ट का जब ये भी व्यूज आए थे कि not even scientists, not even the modern doctors, but also Dr. Vijay Karsal also says that because of some meteoric or telluric causes, जैसे कि सर ने कहा था कि अर्थ बहुत डैमेज हो रही है, अर्थ बहुत अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ सम रेज, सम एक्सप्लोजन, सम जैसे कि 5G आया था जब भी, तो उस वजह से अर्थ को बहुत हानि हो रही है और अर्थ बहुत हार्मफुल फील कर रही है, जिसकी वजह से ये सब इफेक्ट आ रहे हैं। ये तब डॉक्टर विजयकर सर का भी एक व्यू उसमें आया था। Yes. So the susceptibility for being morbidly affected by which is possessed by only a few persons at one time. Allied to these are those diseases in which many persons are attacked with very similar sufferings from the same cause. Yes, epidemically. These diseases generally become infectious, contagious when they prevail among thickly congregated masses of human beings. Yes. So these are the causative factors or causations of acute infectious diseases or epidemic diseases. Yes. Hence, arise fewer in each instance of a peculiar nature, and because the cases of disease have an identical origin, they set up in all those they affect an identical morbid process which, when left to itself, terminates in a moderate period of time in death or recovery. The calamities of war, inundations, and famine are not infrequently their exciting causes and producers. Sometimes they are peculiar acute miasm which recur in the same manner. The acute miasm, that means sora or the burst of latent sora, the same manner, hence known by some traditional name, which either attack persons but once in a lifetime, जैसे कि जो वायरल डिजीज होते हैं, mumps, measles, corona, like this, at the same as the smallpox, measles, whooping cough, the ancient smooth or bright red scarlet fever, syndrome, and the mumps, etc. So यहाँ पे किस टाइप के डिजीजेस एक्यूट डिजीजेस में आते हैं और उसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, ये सब चीजें डॉक्टर हैनीमन ने एफोरिज्म नंबर 73 में एक्सप्लेन की है। तो थोड़ा सा पार्ट बचा है 73 का, और सच एज रिक्योर फ्रीक्वेंटली इन प्रीटी मच द सेम मैनर, द प्लेग ऑफ द लिवेंट, द येलो फीवर ऑफ द सी कोस्ट, the ascitic cholera, etc. These are the examples of acute infectious diseases. So this is aphorism number 73. Dr. Hahnemann described about causes of diseases about 200 years ago. तो डॉक्टर हैनीमन ने 73 में क्या पॉजिशंस दिए है, क्या पॉजिटिव फैक्टर्स दिए है, जो 200 years before he writes in his book, The Theory of Chronic Disease. Exciting cause for acute disease: excess food, insufficient supply of it, severe physical impressions, chills, overheating, dissipation. Dissipation, that means debauch or debauchery or extravagance, strain, physical irritation, mental emotions. These are the most common causes for acute diseases. The view of Dr. Vijay Karsal. Dr. Vijay Karsal क्या कहते हैं? How Dr. Praful Vijay Karsal has correlated these thoughts and ideas with the help of
knowledge of modern science. Dr. Praful Vijayakar sir has correlated these thoughts and ideas about the positive factors propagated by Dr. Hahnemann 200 years ago with the causes of cell injury mentioned in Robin's pathological basis of disease. तो किस तरह से सेल इंजर्ड होता है, उसके बाद डिजीज स्टार्ट होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स बॉडी देती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन एंड वी कॉल इट एज अ एक्यूट डिजीज. सो इन सर्स बुक ये सर ने, डॉक्टर विजयकर सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है द एंड ऑफ माय अजम्पशंस ऑफ माय, ये बुक में सर का ये थर्ड बुक था जिसमें सर ने ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. हमने लिया है ये हमारे बुक रीडिंग वर्कशॉप्स में. यस सर, मेंशन कॉजेस ऑफ सेल इंजुरी. कितने टाइप के कॉजेशंस है सेल इंजुरी के, उसमें फिजिकल, मेंटल, मैकेनिकल, बहुत केमिकल, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स सर ने दिए हैं. सो डॉक्टर हैनेमन सर ने 73 में सम लिमिटेड कॉजेस वहां पे दिए, लेकिन उससे भी ज्यादा और कौन सी चीजें जो सेल को इंजोर कर सकती है सर ने द एंड ऑफ माय assumptions ऑफ माय बुक में एक्सप्लेन किया. सो एवरी डिजीज स्टार्ट विद द सेल इंजुरी, और जैसे ही सेल इंजर्ड होता है उसके बाद बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करेगी उस टाइप का डिजीज और उस टाइप का, मतलब जो माइजम वहां प्रेजेंट है उस टाइप का बॉडी रिएक्ट करेगी और उस टाइप का डिजीज वहां पे आपको मिलेगा. Yes, so the normal cell is confined to a narrow range of functional and structural changes due to its genetic programming. और ये जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग इट इज टोटली बेस्ड ऑन द माइजम, कि जीन्स में माइजम कौन सा प्रेजेंट है, वो कौन से जीन्स माइजम को लेके आए, मतलब बाय द पेरेंट्स और बाय द बर्थ, उनमें कौन सा माइजम डोमिनेंट है, उस हिसाब से वहां पे उस टाइप के डिजीज दिखेंगे. यस, सो द जीन्स रेगुलेट द सेल मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन एंड डिसाइड इट्स रिएक्शन टू स्टिमुलस और स्ट्रेस. यस, तो ये सब चीजें रेगुलेट करती है जीन्स. यस, सो the cell is nevertheless able to handle the normal physiological demand, so-called normal homeostasis. तो किसी भी हर हाल में सेल को अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी होती है, इसलिए एक भी सेल अगर इंजोर होता है तो उसके बाद फास्ट प्रोसेस होके वो मतलब बाय नेचुरली वो अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करेगा. इसके लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म में जाएगा, और डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है जो हमने अभी इसके पहले लेक्चर्स में देखे, तो कितने टाइप के रिस्पॉन्सेस, डिफेंस रिस्पॉन्सेस आते हैं ये भी देखा. सो मोर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लीड टू अल्टर स्टेट ऑफ द होम्योस्टेसिस. दिस चेंज इज मीन टू इंक्रीज द वायबिलिटी ऑफ द सेल. अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं करता है तो वहां पे सेल डेथ हो सकती है. लेकिन इस चीज को मेंटेन रखने के लिए, मतलब जो हमने फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखा, दैट इज द सर्वाइवल फॉर सेल, क्योंकि अगर वो खुद सर्वाइव होता है तो वो दूसरों की मदद करेगा, इसीलिए बॉडी को हेल्दी रखेगा, अदर ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा, इसलिए उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा दैट इज द सर्वाइवल फॉर सेल्फ, और इसके लिए खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करता है या फिर हेल्दी रखना जरूरी होता है. तो ये होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स. अंडर इंक्रीज डिमांड दिस एडेप्टिव रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी. और जब ये रिस्पॉन्स फेल हो जाएगा देन देर विल start the hypertrophy accumulation. Yes, they adapt some structural, morphological, structural changes. Yes, then conversely, atrophy is also an adaptive response where there is a disease in size, decrease in size and function of cell. तो यहाँ पे साइकोसिस का टाइप दिया है, एक तो हाइपरट्रोफी होगी, नहीं तो एट्रोफी होगी, मतलब साइकोसिस एक्सेस और the psychosis less. This is the second response of the cell. If the adaptation crosses limit, the cell undergo cell injury. जब एडेप्टेशन मतलब एक तो एट्रोफी या फिर हाइपरट्रोफी ये भी वहां पे फेल हो जाता है, देन द सेल गोज इनटू द डिस्ट्रक्शन.
So this is the third response. So what can injure a cell? कौन से फैक्टर्स है जो सेल को इंजोर कर सकते हैं? तो हमने जो 73 में देखा, जो हैनेमन ने लिख के रखा है, उसको ही डॉक्टर विजयकर सर ने मॉडिफाई करके लेटेस्ट नॉलेज अप्लाई करके इसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट कैन इंज्योर अ सेल? फिजिकल एजेंट्स लाइक मैकेनिकल ट्रॉमा, extremes of temperature, burns and deep cold, sudden atmospheric changes, electric shocks, radiations, magnetism, cosmic radiations, etc. Then oxygen deprivation to cell, ischemia, then decreased blood supply to a cell, causing decrease of nutrition to the cell, chemical agents and drugs, glucose or salt in hypertonic concentration, oxygen in high concentration, poisons, for example, cyanide, arsenics, mercuries, salts, air pollutants, insecticides, herbicides, carbon monoxides, and asbestos. Then social stimuli like alcohol and narcotics. Infections or infectious agent like bacteria, fungi, viruses, parasites, immunological reaction, self antigens, etc. तो आप देखो कि जो वर्ल्ड में वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसमें बहुत बार ये 1 मिनट, बहुत बार हम ये मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ते हैं कि अभी ये कंट्री जैसे कि बैक्टीरियल वॉर या फिर कुछ इन्फेक्शियस एजेंट 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है. सो इन्फेक्शियस एजेंट स्प्रेड कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से जैसे हमने कोरोना के टाइम पे ये सुना, ये देखा कि न्यूज में, मीडिया में कि चाइना ने ये सब चीजें स्प्रेड की है, जिसकी वजह से कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया. तो ये जो अम, अम, मतलब जैसे अभी अभी जो वार हुई, उसमें भी ये सुनने में आया कि कुछ इस तरह से बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड करने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है, तो बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं. तो कभी कभी जब इस तरह के जो भी वार में शस्त्र और जो यूज करते हैं, उसका इफेक्ट उनको लगता है कि इससे ज्यादा ये बेटर रहेगा डिजीज स्प्रेड करने का, तो उस टाइप का भी होता है. तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो मास में, मतलब ह्यूमंस को इल करने के लिए, ह्यूमंस को किल करने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिजीजेस स्प्रेड करने के लिए. सो this can injure a cell. Then what can injure a cell? Then genetic dearrangement, nutritional imbalance, benumbing agent, any foreign proteins, etc. So these are the positive factors जो विजयकर सर ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स डॉक्टर हैनेमन 73 में नहीं दे पाए, जो चीजें डॉक्टर विजयकर सर ने with the help of 73 explain किया. So from these soric causes, जैसे कि soric causes, जो soric disease मोस्टली जिससे
मतलब सोरिक डिजीज के कॉजेशंस जैसे कि डिस्टरबेंसेस, मतलब मेंटली अगर हम देखते हैं तो जैसे कि एक्सेसिव इमोशंस, इरिटेबिलिटी, एंगर, हर्ट, ग्रीव, ये सब चीजें होती हैं जो मेंटली वीक करती है और उसके बाद बॉडी बिकम इल. सो सोरिक कॉजेज always use some acute diseases. So disturbances, irritabilities, anger, hurt, grief. Then psychotic causes like stress, slow stress, stressful and prolonged grief, etc. Then syphilitic causes like sudden violent trauma, shocks, frights, etc. तो हम देखते हैं कि जैसे कि ये जो सिपिलिटिक में कॉजेज दिए कि सडन वायलेंट ट्रॉमा, जैसे कि सडन शॉक, कुछ सुन लिया, फिर कुछ न्यूज सुन लिया हमने, किसी का कुछ कॉल आता है और हम पट से मतलब वो कॉल उठा के सुनते हैं. तो हमने ये बहुत बार ये चीजें देखी है कि सडन पेशेंट कोलैप्स होता है, वो हार्ट अटैक आता है, लाइक दिस. सो दीज आर द सोरिक कॉजेज फॉर सिपिलिटिक diseases, psychotic diseases, and the soric diseases. Sora में mostly simple anger, irritability, simple emotion. Psychotic में एक ही चीज बार बार जो होते रहती, जैसे कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है अंडर द फैमिली, और वो बार बार वही चीज बार बार रिपीट हो रही, तो जिसकी वजह से साइकोटिक डिजीज वहां पे क्रिएट हो सकता है. सो दीज आर द According to myism, these are the positive factors, mental positive factors. तो हमने फिजिकल प्लस मेंटल दोनों भी पॉजिटिव फैक्टर्स देखे यहाँ पे. मोस्टली जो हम एक्यूट में कंसिडर करते हैं दैट इज द एक्साइटिंग कॉजेस, और एक्साइटिंग कॉजेस की बहुत अच्छी लिस्ट डॉक्टर विजयकर सर ने यहाँ दी है. देन एफोरिज्म नंबर 189. 189 हमने इसके पहले भी स्टार्टिंग में ही देखा था, और अभी और उसमें क्या अलग है देखते हैं. सो एंड एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शंस विल सफिश टू कन्विंस अस दैट नो एक्सटर्नल malady not occasioned by some important injury from without can arise, persist, or even grow worse without some internal cause, without the cooperation of the whole organism, which must consequently be in a disease state. It could not make its appearance at all without the consent of the whole of the rest of the health, and without the participation of the rest of the living whole of the vital force that pervades all other sensitive and irritable parts of the organism. Indeed, it is impossible to convince its production without the instrumentality of the whole dearranged life. So intimately are all parts of the organism connected together to form an individual whole in sensation and function. No eruptions on the lips, no heat law can occur without previous and simultaneous internal ill health. और ये internal ill health के लिए जो important causative factor होता है, that is the genes, and the genes may present myism. So Dr. Hahnemann clearly explains that any disease in the body can exist, arise, or persist and grow only because of internal cause. तो हर बात के लिए कॉजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कॉज कुछ नहीं होता है. तो सिंपल अगर हेडेक भी होना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है. जैसे कि मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताऊंगा. आज एक पेशेंट आया. एक्चुअली वो पेशेंट मेरे पास बहुत दिनों से ट्रीटमेंट कर रहा था. वो पेशेंट को हाइटस हर्निया प्लस सीवियर गैस्ट्राइटिस था. तो उसका गैस्ट्राइटिस हाइटस हर्निया कंप्लीट क्योर हुआ. उसके
मतलब कुछ साल बाद अभी वो पेशेंट आया तो कुछ फिंगर्स में, हैंड्स में ट्रिमलिंग ये सिम्टम लेके आया। तो यहाँ पे और एक बात, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि एंटीसोरिक रेमेडी, अगर कोई पेशेंट कुछ मतलब कोई डिजीज लेके आता है तो एंटीसोरिक रेमेडी कब प्रिस्क्राइब करना है। तो वो पेशेंट जब आया था तो हाइटस हर्निया और सम गैस्ट्रिक सिम्टम्स लेके आया, सीवियर एंटरम गैस्ट्राइटिस उसे था। तो वो सिम्टम्स उसके कंप्लीट क्योर हो गए। उसके बाद उन्हें मतलब वहाँ हेरिंग्स लॉ फॉलो हुआ, उनके बॉडी पे इरप्शंस आए, इरप्शन चले गए। ही इज कंप्लीट ओके फ्रॉम दैट क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो वो कंप्लीटली ओके। वो कुछ कुछ साल बाद अभी रिटर्न आया पार्किंसन के सिम्टम्स लेके, ट्रिमलिंग इन द हैंड्स। तो जब वहां पे हेरिंग्स लॉ फॉलो हुआ, वो कंप्लीटली क्योर हुआ। अब ऐसे इसमें जैसे कि हमने पढ़ा है कि एंटीसोरिक रेमेडी इज द मस्ट, लेकिन एंटीसोरिक रेमेडी कब देना है? जब हम कोई एक्यूट कंडीशन में पेशेंट देख रहे हैं और उसे उस कंडीशन से जो उसके लाइफ के लिए थ्रेटेन कर रही है, लाइफ के लिए डेंजरस है, वो कंडीशन से जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो तुरंत वो जो हमने स्टेट सिमिलम दिया उसके बाद तुरंत हमें एंटीसोरिक देनी होती है। अब ये पेशेंट को हमने ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ हिज माइजम उससे हमने DCS दिया और वो कंप्लीटली बाहर आया। तो अभी जो न्यू डिजीज वो लेके आए हैं, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 7th लेयर का डिजीज उसे क्यों हुआ है, सॉरी 6th लेयर का डिजीज उसे क्यों हुआ है, नर्वस सिस्टम का। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। तो मोस्टली ऐसी कंडीशन जो पार्किंसन के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कि जैसे कि समथिंग लूजिंग और समथिंग नॉट अंडर कंट्रोल और नॉट गेटिंग और नॉट कैचिंग द दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो ये चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट, जैसे कि वो एक डिजीज से कंप्लीटली बाहर हो गया था लेकिन बाद में उसे ये डिजीज आया, बट इट इज अ हायर लेवल डिजीज। सो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जब का डिजीज उसका साइकोटिक डिजीज था, नाउ इट इज सिफिलिटिक डिजीज। सो बट इट इज नॉट मतलब इतना कंप्लीट बॉडी में नहीं था, इसलिए वो कंप्लीट हम उसे सिफिलिटिक डिजीज नहीं कह सकते, लेकिन इट मे बी द सोरो साइकोटिक, सोरो सिफिलिटिक और साइकोसिफिलिटिक डिजीज, क्योंकि क्रॉनिक है। तो ऐसे कंडीशन में इंपॉर्टेंट होता है कि फाइंड आउट द पॉजिटिव फैक्टर एंड प्रिस्क्राइब। तो 100% वहाँ पॉजिटिव फैक्टर था, क्योंकि उनके कुछ लैंड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल हो रहा था। उनको डर लग रहा था कहीं मेरी लैंड मेरे हाथ में से जाती क्या। तो इस तरह से वहां पे पॉजिटिव फैक्टर मिला, और वो देख के जो रेमेडी, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टाइम रेमेडी दिया था वो रेमेडी नहीं आएंगे, लेकिन वो रेमेडी नहीं आई, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री की ही रेमेडी यहाँ पे आई, क्योंकि जब वो हॉट था और नाउ ही फील्स वेरी चिली। सो अभी उसकी वही रेमेडी की कॉम्प्लीमेंट्री चिली रेमेडी उसकी अभी रेमेडी आई। तो कहने का मतलब कि एफोरिज्म नंबर 189, जैसे कि हर चीज के लिए पॉजिटिव फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक पॉजिटिव फैक्टर हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमें उसका राइट सिमिलिमम मिल नहीं सकता है। इसलिए हर केस में हमें, जैसे कि 189 एफोरिज्म नंबर है, तो इसके थ्रू पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। सो intimately are all parts of the organism connected together to form an indivisible whole in sensation and functions. No eruptions on the lips or whitlock can occur without previous and simultaneous internal ill health. So जो फर्स्ट डिजीज था वो क्योर होने के बाद इतने मतलब शायद 5-6 साल के बाद उसे ये डिजीज आया, मतलब अभी कुछ तभी इंटरनल
इल हेल्थ हुआ, मतलब इंटरनल उस वहां पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर था, दैट्स वाई उसके जो सेल न्यूरॉन्स थे, उसके नर्व सेल थे, वो इल हो गए. So Dr. Hahnemann clearly explains that any disease in the body can exist, arise, persist, and grow only because of internal cause. जब तक internal cause नहीं होगा, body will remain healthy. तो internal body को इल करने के लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनल कॉज, और इंटरनल कॉज हर केस में फाइंड आउट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. So whatever was happening inside the human body was not due to any local cause. यस, कोई लोकल कॉज नहीं होता है, हमें डीप जाके वो पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है. सो नो सिम्टम्स और साइन और पैथोलॉजी कैन एग्जिस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ other cells and tissues of the body. If some process that of inflammation, growth or the ulceration has occurred anywhere in the body, the invisible whole, as he calls it, was aware of it. So intimately are all parts of the organism connected to each other together to form a whole body. Yes, अगर बॉडी का एक भी सेल यील होता है, इसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो होल बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा. So Dr. Praful Vijayakar sir tells that the only common link that was present in the whole body, irrespective of system, organs, tissues, was the genetic code. It was the genetic code of an individual which was omnipresent. At the genetic level, the individual organism decides the production of each wart or ulcer. Therefore, he mentions no eruption on the lips or on whitlock can occur without previous and simultaneous internal ill health. तो पॉजिटिव फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें डॉक्टर विजयकर सर ने विद द हेल्प ऑफ 189 एक्सप्लेन किया है. सो यहां तक अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. या फिर हम आगे चलते हैं 204. Aphorism 204. If we deduct all chronic affections, ailments and diseases that depends on a persistent unhealthy mode of living, इसमें भी कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ही दिए हैं, as also those innumerable medicinal maladies caused by the irritation, persistent, harassing, and pernicious treatment of diseases often only of trivial character by physicians of the old school. Most the reminder of chronic diseases result from the development of these three chronic miasms: internal syphilis, internal psychosis, but chiefly and in infinitely greater proportion internal sora. Yes, देखो यहाँ पे डॉक्टर हैनीमन ने इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज दी है कि सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, बट उन्होंने कहा है कि ग्रॉस ग्रेटर प्रोपोर्शन दैट इज सोरा. तो सोरा को हैनीमन ने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में, उसके लिए इतने सारे पेजेस हैं, और सिफिलिस और साइकोसिस के लिए सिंपल 1 और 2 पेजेस दिए हैं. मतलब सबसे डेंजर अकॉर्डिंग टू हैनेमन, सबसे डेंजरस मायाजम है सोरा. अगर सोरा का एक भी सिम्टम बॉडी में रहता है तो वहां पे रिलैप्स ऑफ डिजीज होने के फुल चांसेस होते हैं. इसलिए कंप्लीट फ्री ऑफ सोरा, हैनेमन ने कहा है कि कंप्लीट फ्री ऑफ सोरा जब आप पेशेंट को करेंगे तभी वहां पे कंप्लीट क्योर होगा. इसीलिए यहाँ पे दिया है कि ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनल सोरा.
each of which was already in possession of the whole organism and had penetrated it in all directions before the appearance of the primary precarious local symptom of each of them. In the case of Sora, the scabious eruptions; in the syphilis, the cancer or the bubo; and in psychosis, the condylomata that prevented their outburst. And these chronic miasmatic disease, if deprived of their local symptom, are inevitable, destined by mighty nature sooner or later to become developed and to burst forth, and thereby propagate all the nameless misery and the incredible number of chronic diseases which have plagued mankind for hundreds and thousands of the year. Yes. So main cause, that is the miasm. तो माइजम ये पोल्यूशन की तरह बॉडी में, जीन्स में, सेल्स में ऑलरेडी होता है, जो बड़े बड़े डिजीज क्रिएट करने में main role होता है. So none of which would so frequently have come into existence had physicians striving in a rational manner to cure radically and to extinguish in the organism these three miasms by the internal homeopathic medicines suited for each of them without exploring topical remedies for their external symptoms. Yes. So every chronic disease that occurs in a patient was invariably due to the process of genetic level. Most of the chronic diseases result from the development of three miasms: internal syphilis, internal psychosis, and internal sora. So, बहुत बार हम बहुत से डॉक्टर्स के साथ डिबेट्स में ये सुनते हैं कि माइजम कुछ नहीं है, माइजम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन हैनीमन ने इतने सारे एफोरिज्म्स में माइजम के लिए लिखा है कि माइजम, बिकॉज ऑफ माइजम द ह्यूमंस बिकम इल. यस. तो किस टाइप का माइजम, किस टाइप का डिफेंस प्रोसेस उस जीन्स में, उस सेल्स में प्रेजेंट है, उस हिसाब से वो पर्सन लाइफ में उस टाइप की डिजीज से सफर होगा. तो कितना इजीली और कितना ग्रेटली हैनीमन ने ये माइजम के लिए बताया कि each and every disease caused by the miasm. Yes. So it should not be treated by local ointment. Yes. जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, तो जैसा हैनीमन ने माइजम को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि माइजम को इतने स्ट्रांगली कहा है कि यही एक रीजन है जो ईच एंड एवरी डिजीज को प्रोड्यूस करता है. तो ये कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी डिजीज लेके आता है, तो हमें ओनली डिजीज क्योर नहीं करना है, तो उसके जीन्स को क्योर करना है, उसके जीन्स को ट्रीट करना है, क्योंकि वहां पे जो प्रेजेंट माइजम है उसे हमें निकालना है. सो इट शुड नॉट बी ट्रीटेड बाय लोकल ऑइंटमेंट और ऑपरेशंस और होम्योपैथिक स्पेसिफिक्स. तो यहाँ पे ये भी कहा है कि भाई अगर हमें उस डिजीज को कंप्लीटली निकालना है तो हमें उसके जीन्स को ट्रीट करना पड़ेगा. तो अगर हम जीन्स को ट्रीट करते हैं तो उसके लिए किस टाइप की ट्रीटमेंट हमें अप्लाई करना है, ट्रीटमेंट लेना है, नॉट ओनली और नॉट ट्रीटेड विथ लोकल ऑइंटमेंट. लोकली कुछ नहीं देना है देन और ऑपरेशंस. मैंने ये भी कहा है कि कोई भी अगर ट्यूमर है, कोई डिजीज है, तो उसको कट कर दो, पेशेंट क्योर होगा नहीं, क्योंकि वो पार्ट वहां से चलेगा, लेकिन पेशेंट वहां उस डिजीज से क्योर नहीं होगा, क्योंकि वो
प्रोसेस तो बाय जीन्स उसमें आई है, उसके जीन्स में वो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की, साइकोसिस की। जब तक वो जीन्स से जाएगा नहीं तब तक उसके बॉडी से हटेगा नहीं। आपने उस पार्ट को कट कर दिया लेकिन वो प्रोसेस को स्टॉप नहीं किया। इसलिए हैनेमन ने ये बहुत अच्छा 204 में कहा है कि इट शुड नॉट बी ट्रीटेड बाय लोकल ऑइंटमेंट और ऑपरेशन और होम्योपैथिक स्पेसिफिक। जैसे कि बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर स्पेसिफिक्स भी यूज करते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में वो स्पेसिफिक्स भी काम नहीं आते, वो भी क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे जीसीएस ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके जीन्स को ट्रीट करना है। दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। फॉर एग्जाम्पल, दिस hematoma was treated as a tumor to be cut or removed with homeopathic specifics or compounds for tumor like calcarea floor, conium, britamure with interosine of the tuberculinum, carcinosin, etc. was a gross, unforgivable violation of homeopathic principles ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूलियर। तो इतना अच्छा प्रिंसिपल हैनेमन ने दिया है कि अगर आप ये प्रिंसिपल यूज करके हर पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हर पेशेंट विल गेट क्योर। बट यही सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर अगर हमें समझ में नहीं आता, हम इसे कंसिडर ही नहीं करते और अकॉर्डिंग टू जैसे कि थेरापेटिकली हम कोई ड्रग्स देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, स्पेसिफिक्स देते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट और परफेक्ट ट्रीटमेंट। यस, सो डॉक्टर हैनेमन ने क्लियरली कहा है कि सी द सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटिव। So homeopaths should treat the miasm or process at the genetic level। तो किस तरह से उन्होंने किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना है वो भी उन्होंने बताया कि होम्योपैथ शुड ट्रीट द माइजम और प्रोसेस एट जेनेटिक लेवल। तो हमें डिजीज ट्रीट नहीं करना, हमें प्रोसेस ट्रीट करना है, हमें माइजम ट्रीट करना है। इफ दे वांटेड टू मेक दिस ट्यूमर डिसअपियर, underlying cause, that is myasm, should be treated। If you cut off the tumor without treating the myasm, it will recur in an inner organ। तो देखो, कल हमने जो एंटीसोरिक का देखा है, तो हैनेमन ने कहा है कि अगर आप वहां पे माइजम ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए एंटीसोरिक का भी कंसेप्ट हैनेमन ने निकाला है कि अगर आप माइजम ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट सिपिलिटिक माइजम से बाहर आ गया, साइकोटिक माइजम से बाहर आ गया, अगर वो सिपिलिटिक से बाहर आता है तो साइकोसिस में जाएगा या फिर डायरेक्टली सोरा में जाएगा। वो साइकोसिस से पेशेंट बाहर आता है तो साइकोसिस से डायरेक्ट सोरा में जाएगा, तो मतलब सोरा वहां पे प्रेजेंट है। इसीलिए अब हमें वो सिपिलिटिक रेमेडी वो सोरा पे एक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो तो प्योर सिपिलिटिक थी। अभी वो सोरिक सोरा को कैसे ट्रीट करेगी, इसलिए ऐसे केसेस में हमें एंटीसोरिक रेमेडीज देनी होती है ताकि पेशेंट सोरा से भी कंप्लीटली बाहर आए और वो कंप्लीटली सिम्टमलेस हो, ताकि हम उसे कह सके कि कंप्लीट क्योर। यस, तो जब वो कंप्लीट फ्री ऑफ सोरा हो जाएगा तभी उसे हम क्योर कह सकते हैं, क्योंकि हैनेमन ने कहा है कि वी हैव टू ट्रीट द मायाजम, नॉट द डिजीज। यस, so that is the miasm should be treated। If you cut off the tumor without treating the miasm, it will recur in an inner organ। अगर आप ओनली ट्यूमर को देख रहे हैं, डिजीज को देख रहे हैं, उसके प्रोसेस को, उसके माइजम को नहीं देख रहे, तब आप उस ओनली डिजीज को वहां से निकालेंगे, वो वहां से निकल जाएगा लेकिन वो रीअपियर होगा उससे मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन में। So the homeopathic physician never treat one of these primary symptoms of chronic miasm। तो डिजीज को यहाँ कहा है कि these are the only primary symptoms of the chronic miasm, not at one of their secondary affections that result from their further development by local remedies, neither by those external agents that act dynamically, nor aid by those that act mechanically। यस, तो किस तरह से हमें ट्रीट करना है ये भी डॉक्टर हैनेमन यहाँ बता रहे हैं। So only the great miasm on which the
they depend whereupon its primary and also its secondary symptoms disappear spontaneously. But as this was not the mode pursued by old school practitioners who preceded him in the treatment of the case, the homeopathic physician generally, alas, finds that the primary symptoms have already been destroyed by them by means of external remedies, and that he has now to do more with the secondary ones, that is the affections resulting from the breaking forth and development of these inherent miasms, but especially with the chronic disease evolved from internal sora. ये भी कहा है कि हर डिजीज का पॉजिटिव फैक्टर सोरा ही होता है, सोरा से ही उसकी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि सोरा ये फर्स्ट मायाजम है जो हर किसी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और वही फिर आगे साइकोटिक सिपिलिटिक डिजीज को प्रोपोगेट करता है. सो द इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ विच एज फार एज सिंगल फिजिशियन कैन elucidate it by many years of reflection, observation, and experience. I have endeavored to point out in my work on chronic diseases, to which I must refer the reader. Yes, so theory of chronic disease में हैनेमन ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. The main cause of all disease is sora. किस तरह से सोरा वहां पे पोल्यूटेट करता है जीन्स को, सेल्स को, जिस वजह से फर्स्ट सोरिक डिजीज होंगे, देन वो आगे आगे बढ़ते हैं, डीप सेल्स में जाते हैं, दैट इज साइकोसिस एंड आफ्टर. तो हमें जब तक सोरा को हम निकालेंगे नहीं, इसीलिए हैनेमन ने सोरा को इतने अच्छी तरह से ग्रॉसली उसे एक्सप्लेन किया है, इतने सारे पेजेस सोरा के लिए लिखे हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट मायाजम हैनेमन के लिए सोरा था कि सोरिक अगर एक भी सिम्टम बॉडी में रहता है तो डिजीज रीअपियरेंस के फुल चांसेस होते हैं. यस, सोरा इज बर्थ मायाजम और वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमें सोरा कंप्लीट क्योर करना होता है. So Dr. Hahnemann wants what a homeopathic physician should not do, what he should do. First and foremost, homeopathic physician should find out what was the diagnosis. Homeopathic physician must know what was the miasm that has given rise to it, as he has to cure his miasm. Yes. तो हमें डायग्नोसिस को नहीं देखना है, हमें देखना है मायाजम को, कि कौन सा मायाजम, कौन सी प्रोसेस वहां पे चल रही है. यस, तो हम जैसा एक टीवी पे ऐड आती है, पाकिस्तान और इंडिया के सोल्जर्स होते हैं, है ना, वो फोन करता है इंडियन सोल्जर पाकिस्तान को, क्या चल रहा है, तो वो बोलता है आपके इंडिया में तो फॉग चल रहा है. उसी तरह से ये फॉग हमारे बॉडी में होता है एज मायाजम. तो जो फॉग बॉडी में चल रहा है, दैट मीन्स जो पोल्यूशन बॉडी में चल रहा है, वो हमें पहले देखना होता है कि कौन सा मायाजम है, और हमें ट्रीट करना होता है मायाजम को, कि भाई डायग्नोसिस मत देखो, ओनली मायाजम देखो. सो होम्योपैथिक फिजिशियन मस्ट नो व्हाट वाज द मायाजम दैट वाज गिवन राइज टू इट, as he has to cure this miasm. If he does not take cognizance of miasm, means his limitations will be the same as all allopathic physician. अगर आप मायाजम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप मायाजम ट्रीट नहीं कर रहे, तो आप लाइक एलोपैथिक फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहे हैं. मतलब आप उस डिजीज को देख रहे हैं, आप उस डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, और वो कुछ दिन बाद वापस वो रिलैप्स होगा, या फिर वो उसी सेम ऑर्गन में होगा, या फिर और इंटरनल ऑर्गन में होगा, मतलब और उसके इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जाएगा. मतलब वहां पे एक तो पैलिएशन होगा या फिर सप्रेशन होगा. यस, सो ही विल therefore find complete cure impossible in diseases like diabetes,
hypertension, fibroids, thyroid problems, and tumor and cancers, etc. This was true not only in physical case but was equally true in disease of mind. Yes, तो क्लियरली बोला है हैनेमन ने कि जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि डॉक्टर विजयकर सर हमेशा इन डॉक्टर्स को कहते थे होम्योपैथ, जो एलोपैथिक टाइप एलोपैथिक पैटर्न टाइप प्रैक्टिस करते हैं, ओनली डिजीज को देख के मेडिसिन देते हैं या फिर स्पेसिफिक यूज करते हैं या फिर पेटेंट यूज करते हैं, वो पेशेंट इस टाइप के डिजीज कभी क्योर नहीं करेंगे। वो मोस्टली सेकंड और थर्ड लेयर तक के डिजीज में रिलीफ दे सकते हैं, पैलिएशन दे सकते हैं, लेकिन जो हायर लेवल के डिजीज है उनको वो कभी भी क्योर नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। सो दिस वाज ट्रू नॉट ओनली इन फिजिकल केस बट वाज इक्वली ट्रू इन डिजीज ऑफ माइंड। यस, मेंटल डिजीजेस प्लस फिजिकल डिजीज जो हाई लेवल की डिजीज है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, seventh layer disease. The genetic code of the individual governs both physical attributes as well as mental attributes. The mental behavior and the mental disease also change with change in miasmatic process at the genetic level. तो अभी समझ में आ रहा है ना, कि हमारी मेडिसिन कहाँ एक्ट होती है। तो डायरेक्ट जीन्स पे एक्ट होते हैं, नॉट ओनली द जीन्स, जीन्स में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उस पे हमारी मेडिसिन एक्ट होती है। मतलब देखो कि कितने डीप एक्टिंग होम्योपैथिक रेमेडीज है कि डायरेक्ट प्रोटीन्स पे एक्ट हो रहे हैं। वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट बाय जीन्स, बाय प्रोटीन्स, है ना। तो इतना डीप साइंस है, इतना इंपॉर्टेंट साइंस है। सो वी चेंज इन miasmatic process at the genetic level. Yes, so we are treating the genes genetic level. So detailed explanation given in the end of the miasm of the miasms, miassumptions of the miasm, Dr. Vijaykar's book. Yes. So हम आज यहीं रुकते हैं, तो एफोरिज्म 80 हम कल देखेंगे। ओके, सो यहां तक क्या अच्छा लगा बताइए। आज बहुत थोड़ा हेवी था, डीप था। जो एनी जीसीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंटीसोरी, जो रेमेडी फिर वो कौन सी भी हो, अगर वो उसका सोरा कवर कर रही है, मतलब वो प्योरली सोरिक रेमेडी है, तो ही वो एंटीसोरिक है। फिर अगर आप सिफिलिटिक डिजीज क्योर कर रहे हैं, डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं और आपने एंटीसोरिक रेमेडी उसे निकाली है, तो वो वहां पे एक्ट नहीं होगी। अगर सिफिलिटिक है तो आपको सिफिलिटिक ही देनी पड़ेगी, लेकिन जब वो सिफिलिटिक से बाहर आएगा, वो साइकोस में जाएगा या फिर सोरा में जाएगा, तब हो सकता है कि आपको वहां पे उसका सोरा मैच करना पड़ेगा, तो आपको एंटीसोरिक रेमेडी वहां प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। यस, yes, new triggering factors which is stronger than previous disease. प्रीवियस डिजीज तो कंप्लीट क्योर हुआ था, इसलिए अभी जो डिजीज लेके आए, तो अभी वो रेमेडी वहां पे हमें ब्लाइंडली प्रिस्क्राइब नहीं करना है कि भाई हमने फर्स्ट टाइम वो डिजीज ये रेमेडी से क्योर किया था, तो अभी ब्लाइंडली आप आंखें बंद करके वो रेमेडी दे दो। नहीं, अभी अभी जो डिजीज है वो हाई लेवल का है, तो आपको उसका पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि वो जब पेशेंट था साइकोटिक माइजम में था, अभी वो सिफिलिटिक माइजम में गया या फिर साइकोटिक माइजम में है या फिर सोरा में है, तो अभी जो डिजीज हुआ है वो जिस भी माइजम का हो, आपको पहले आपको उसका पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर अकॉर्डिंग टू आपको अकॉर्डिंग टू माइजम आपको उसको रेमेडी प्रिस्क्राइब करना है। Yes. अगर वो फर्स्ट रेमेडी वहां पे सेम रेमेडी आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वहां पे अलग मेडिसिन भी आ सकती है। Yes. क्योंकि
हर बार एक ही जीसीएस आएगा ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है मायाजम पे कि पेशेंट अभी कौन से मायाजम में है। यस, तो मायाजम फिर वो उस मायाजम के हिसाब से वहां पे रेमेडी आएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई पहली मेडिसिन ही वो आएगी, वो फर्स्ट जीसीएस ही उसका लाइफ लॉन्ग चलेगा। नो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस। यस, और नहीं। ओके, सो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ओके, सो और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, अगर कुछ नहीं है तो हम क्लोज करते हैं, विदा लेते हैं। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट एफोरिज्म्स हमने आज देखे, जो प्रैक्टिस बेस एफोरिज्म है, प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट प्रैक्टिस कैसे की जाए उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो माइजम्स आज हमने देखे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर न्यू एफोरिज्म्स के साथ पढ़ाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू। आज कोई, थैंक यू सर। यस, आज कोई सब कुछ, आज बहुत अच्छा बताया सर कि प्रैक्टिस के बारे में, प्रैक्टिस कैसे करना है इसके बारे में। तो यस, थैंक यू। सर, थैंक यू सर। फिर भी आज थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसलिए। नहीं, ओके, अच्छा समझा सर, लेकिन आप जो भी आज बताए अच्छा ही समझा क्लियरली। थैंक यू सर। ओके।